मैंने मेरे प्रोड्यूसर के ऊपर से का केस कर दिया था। क्या? उर्वशी, you're so beautiful. क्यों? मेकअप क्यों? अब इनको क्या हो गया फिर से? दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। बस इन्हीं की कमी थी। ट्रस्ट मी गाइस, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये सब चल क्या रहा है, लेकिन आजकल ना पॉडकास्ट / इंटरव्यूज का यही हो गया कि जब तक कुछ तड़कता भड़कता ना बोलो ना, कोई देखता ही नहीं है। और ये जो 3 देवियां मैंने आपको दिखाई है ना, ये लंबी लंबी फेंकने में, कंट्रोवर्शियल बातें करने में और डिलुलू होने में सबसे आगे। Delulu is only Sululu. लेकिन सोचो यार, क्या टाइम आ गया कि हमारी फर्स्ट क्वीन उर्वशी रौतेला I was the first one to do a lot of first things. वो फर्स्ट से थर्ड पे आ गई है इस डिलुलू होने की रेस में। I'm the first Indian artist to meet Leonardo DiCaprio, and he complimented me. Oh shit, here we go again. Miss Teen India, then Miss Asian Supermodel, Miss Tourism World, Indian Princess, Miss Universe India, perform as a performer, जीता था Miss Universe India, second time जीता था Film Festival, and then into fashion. समझ गए उर्वशी जी, आप हर चीज में फर्स्ट हो और आप हर चीज में बेस्ट हो। इसके अलावा कुछ नया है आपके पास? Soon, the people who really understand me, the time will come then when they will feel that Urvashi is very futuristic. Urvashi thinks 10 years ahead of time. अरे 10 years कहाँ उर्वशी जी, आप तो हम लोगों से 100 साल आगे हो। इनफैक्ट आई नो आप बचपन से ही ऐसे हो। I achieved more than what I thought in childhood. Of course. I was the head girl of my school, so there were a lot of expectations from me. I scored, by the way, 97%. I was not happy. Obviously यार, आप 97% थोड़ा ना 1097% डिजर्व करते थे। आफ्टर ऑल आपको ये सब जो बनना था। IAS officer, and then maybe like aeronautical engineer, or maybe like gymnast, maybe a cricketer, maybe, or basketball player. अबे इतनी उम्मीदें तो पूरे मोहल्ले के पेरेंट्स अपने बच्चों से नहीं लगाते जितनी आपने खुद से लगा रखी थी। खैर, इस सब बकवास के बाद फाइनली उर्वशी जी ने एक बहुत ही स्पाइसी चीज बताई। But yeah, there are some false rumors, but those were done by nepo kids against me. What? So that is very bad, you know. And they are trying to do all these things with outsiders, which is not good. लेकिन somehow इसमें भी उर्वशी जी ने तरीका ढूंढ ही लिया अपनी तारीफें करने का। When a person feels that there is someone out there who is with a great skill set, is very confident, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। they are kind of insecure. ओह, तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो अनन्या, जानवी, सारा टाइप लड़कियां हैं, ये आपसे जलती हैं? When you are too perfect in a lot of people's eyes, they will try their level best to pay X amount of millions to spoil your name on social media. अरे दीदी, आप इतनी सी बात बोलने के लिए इतना सारा क्यों बोल जाते हो? सच बता रहा हूँ गाइस, ये मोहतरमा ना एक शब्द बोलने के बाद 2 सेकंड का गैप लेती है और फिर भी जो बोलना चाहती है वो ढंग से कन्वे नहीं कर पाती। एंड द आयरनी इज कि ये चीज अब इन्हें खुद भी पता है। People always like, you know, they're always misunderstanding me. They're not able to understand. कैसे करें अंडरस्टैंड जब आप बात ही ऐसे करते हो? People, they really can't understand me, and they really don't. I think they really don't understand me properly. आई स्वेयर, मुझे दे के अलावा कुछ समझ नहीं आया। Being an actress is like it's like उर्वशी, इट्स ओके, टेक योर टाइम, आराम से, नर्वस नहीं होना, आराम से बोलो। लेकिन उसके बाद जब मुंह खोलोगे ना, तो कुछ सेंस की बात करना। right now I've signed a brand. It's of a men's lingerie brand. It's the first ever in India. I'm the first ever ambassador for that as well. इतनी खुश होने की बात है नहीं जितना खुश आप हो रहे हो, लेकिन चलो ये तो फिर भी ठीक है, क्योंकि इसके बाद उर्वशी टॉक्ड अबाउट इंडियन पैप्स और कैसे वो एक्ट्रेसेस के इधर उधर जूम करके फोटोज लेते हैं, एंड शी इवन हैज अ सॉल्यूशन। The zoom camera should be literally banned because it's meant for animals. It's meant for wildlife photography. To zoom into the lion's face or tiger's face. We are not animals. Reminds me of the time when Rakhi Sawant said कि सीलिंग फैंस बैन हो जाने चाहिए ताकि उनसे कोई लटक ना सके। सीलिंग फैन हटाया जाए, ये मेरी मांग है। सीलिंग फैन हटाया जाए, टेबल फैन रखो, एसी रखो। Same but different. The cameraman put the camera inside her mouth. Really? Why? What the girls, people, they want to see her beauty. What is the need to zoom that much? बात तो सही है। Is she an animal? Is she like what? Like, are you in a forest? Stop zooming. Now guys, as you know कि मैं बिलीव करता हूँ उर्वशिज्म में, इसीलिए मैं पहल करना चाहूंगा इस स्टॉप जूमिंग इनिशिएटिव की। फर्स्ट इंडियन यूट्यूबर जो अपने खुद के फोन का जूम कैमरा रगड़ डालेगा ताकि वो खुद जूम ना कर पाए। Stop zooming. And now that this is done guys, please like, comment, share and subscribe ताकि मैं सितंबर में नया आईफोन ले पाऊँ जिसमें जूम कैमरा नहीं है, by the way. Stop zooming. Then Urvashi also talked about AI kissing videos, क्योंकि let's be honest, दुनिया की सारी रैंडम चीजों की बात करना उर्वशी की आदत है। Through AI, they will make 2 people kiss each other. शुक्र है ये नहीं बोला कि AI को भी बैन कर दो, वरना मैं वो छोले और भटूरे की प्रेम कहानी वाले वीडियोस कैसे देख पाता। What the heck? फिर उर्वशी ने अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स भी बताए जिनसे आप और मैं तो नहीं, लेकिन अनन्या पांडे जरूर रिलेट कर लेगी। कि अब जैसे कि नेल आर्ट है, 5 घंटे लगते हैं इसको। बाप रे। You have to sit for 5 hours. Oh my God. अभी जैसे कि कुछ लंबे बाल का है कुछ, and उसी दिन शावर किया है। I don't know why I'm talking about this bullshit. Also you do realize कि आप कितना डम साउंड कर रहे हो, and yet you continue to do it.
नाइस। Life is definitely easier for girls if they are beautiful. Then yes, of course. वेट व्हाट? लड़कियों की खूबसूरती देखी जाती है और लड़कों का like you know the kind of financial security they can provide वो देखा जाता है. उर्वशी, that's very sexist. Actor doesn't have to spend that much. An actress has to spend more than an actor. ये सही है यार कि फुद्दू बातें खुद करो और बाद में ब्लेम डाल दो उन यूट्यूबर्स पे जो आपको रोस्ट करते हैं। The YouTubers I'm talking about, not all YouTubers. I'm talking about specific YouTubers who only make such kind of videos to literally destroy any of the artist's image. So those are the problems. चलो शुक्र है मैं इस कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन फिर भी आई बिलीव कि उर्वशी कोई आपकी इमेज बना या बिगाड़ नहीं सकता, बिकॉज व्हाट मैटर्स इज कि आप क्या बोल रहे हो, नॉट व्हाट अदर्स आर सेइंग अबाउट यू। आल्सो लेट्स बी रियल उर्वशी, आप इन्हीं वीडियोस की वजह से रेलेवेंट हो, सो आई एम सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, लेकिन लोगों के वीडियोस डिलीट करवाना क्योंकि आपको वो पसंद नहीं आए इज नॉट द फ्लेक्स यू थिंक इट इज। उनका पेज ही उड़ जाना चाहिए। टॉपिक चेंज करते हैं गाइस, क्योंकि एक बार इसकी पीआर वाले मेरे से वीडियो डिलीट करवा चुके हैं डीएम करके, दोबारा नहीं करूंगा। इसलिए लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिविटी। लोगों के पेज डिलीट करने की बात करने के बाद पॉजिटिविटी। People who love themselves will love me. People who don't love themselves will never ever love me. I'm a sort of a person who will find goodness in everything. If I talk about you, I'll tell you 10 amazing things about you. So humble. 70 million followers. The number needs to be edited. It's more than 200 million. Because Instagram and Facebook you forgot. And then YouTube you forgot. And then Twitter you forgot. There's so many other options. Okay. And then TikTok you forgot. And she even said कि I know लोग मुझे ट्रोल करते हैं, but they never ever talk about me. वो मुझे ट्रोल नहीं करते, वो मुझसे मजाक करते हैं। You know, they're talking about things. They're not just talking about she's not good at dancing or she's not good at acting or she's not good at a job. Because I know I'm best in my job. फिर शुरू हो गई। If they want to talk about Parrot, let them talk about Parrot. If they want to talk about the Cool Cake, let them talk about Cool Cake. If they want to talk about First Indian, हाँ हूँ मैं First Indian हूँ, मैं क्या करूँ? देखो स्टार्टर्स चिल्लाना बंद करो और हर जगह जाके सेम बात करके पकाना बंद करो। I'm often told by most of my family members और जो भी मेरे बहुत ही close friends हैं कि उर्वशी आप without makeup you look million times better than with makeup. Wow. They always tell me that. And you also always tell us that. Makeup के संग you look ugly. They always say that Urvashi with makeup you look ugly. Makeup लगाने के बाद तुम बदसूरत दिख रही हो। और ये सब करके हमारा टाइम खोटी करने के बाद दीदी जी अपने टाइम के बारे में ये कहती हैं। You will never ever see me wasting time. जब भी कुछ काम होता है तभी बात करनी मैं पसंद करती हूँ। पर जो भी कहो यार, उर्वशी के झूठ कम से कम हार्मलेस तो होते हैं, अनलाइक आवर नेक्स्ट डेलुलु क्वीन जिन्होंने 6 साल बाद जाके फाइनली ये मान ही लिया कि उन्होंने हम सबका काटा था बिग बॉस में अपना नकली पति लाकर। वो तो आज भी मेरा दोस्त है, वो भाड़े का पति था। हाँ अस भारती जी अस। फिर वो बोलता कि यार तुम बिग बॉस जाती हो ना? हाँ गई थी ना, मुझे भी ले जाओ। फिर मैंने प्लान किया जुड़ा शादी का, ये मेरा हस्बैंड करके लेकर गया, तो वो गया। फिर गया उसके बाद सलमान ने उसको भी गाली दी और मुझे भी गाली दी। अच्छा किया, क्योंकि उसकी बीवी मीडिया में आ गई, अरे ये तो हमारा पति है करके। और ये सब आपको 6 साल बाद बताना सही लग रहा है। वाह राखी जी वाह। और मैं सोची कि क्या पता पति बना के लेके जाए, इतना अमीर है, मुझे मैं इसी से शादी कर लूं, इतना अमीर, बाद में मुझे कभी मेहनत करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसी के पैसे उड़ाऊंगी आराम से बैठ के। इसे कहते हैं सादा जीवन तुच्छ विचार। अब उसका तलाक हो गया है? हाँ मेरे कारण। प्राउड ऑफ यू राखी जी। तलाक हो गया मेरे कारण। और इसीलिए वो भाई साहब अब राखी जी की क्लाउनरी का एक परमानेंट कैरेक्टर बन चुके हैं। लेकिन राखी जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि वो उनसे या किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। कभी शादी नहीं करती। ना ना ना, इससे अच्छा कुत्ते बिल्लियां पाल लो भाई, शादी ना करो, आदमी ना पालो। नहीं उसको क्या देख रही है? मेरे भाई तेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है। तो जीजू है। जीजू बहुत अच्छा है भाई। लेकिन गाइस वी ऑल नो कि इस चेहरे के पीछे बहुत दर्द छुपा है जिसे राखी जी हंसते हंसते बयान कर देती है। और मैं खुद एक जिंदा लाश बन गई हूँ अभी फिलहाल। यार डीप डाउन राखी जी बिल्कुल टूट चुकी है। मेरी जिंदगी से मेरा भरोसा उड़ गया। कैसे कीचड़ों में से आई हूँ मैं, कैसे नाम बनाया, सब इस्तेमाल करते हैं मुझे। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास भी नहीं करे। ये जो शादी करने आए ना मुझे, ये लोग मुझे लूटने आए भारती, इन्होंने मुझे लूट लिया। पर आप भी तो रितेश को लूटने की ही फिराक में थी राखी जी। कभी मेहनत करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसी के पैसे उड़ाऊंगी आराम से बैठ के। और वैसे ना मैं देख भी रहा हूँ कि आजकल ना ये राखी जी बड़ा पैसा पैसा करती हैं, पैसे पे क्यों मरती है टाइप लेडीज हो गई हैं। तो आपकी सिस्टर के साथ अभी आप बात करते हो? वो सब गरीब है क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं करी। पता नहीं भाई इनकी क्या खुंदस है अपनी फैमिली से, लेकिन ये हर जगह उनको भिगो भिगो के ताने मारती हैं। हमारे खानदान में औरतों का घूंघट खोलो तो आदमी दिखते हैं क्योंकि वैक्सिंग नहीं करते, इतनी बड़ी बड़ी मूछें, बाल इतने बड़े बड़े, हाथ पैर में बाल। राखी जी माना कि कुछ रिश्तेदार तो होते ही बेइज्जती के लायक है, लेकिन अपने सगे भाई बहनों को तो बख्श दो यार। ये मेरी भाई बहनों की तरह ये जो सब शादी वादी करके बच्चा करके पैदा हो, ये सब मैं नहीं करूंगी भाई। मैं तो बनी हूँ, एक ही जिंदगी है, मैं तो कुछ करूंगी, मैं तो कुछ करूंगी। और फिर जब फाइनली राखी जी ने जिंदगी में कुछ कर लिया तो उन्होंने एक गाड़ी ली। सबसे पहले वो मारुति खरीदी थी मैंने, 4 को ठोका था, आज भी याद है। ड्राइविंग सीख के 4 को ठोका था। लेकिन पैसे आने के बाद भी राखी जी ने चिंदीगिरी नहीं छोड़ी क्योंकि यू गॉट टू स्टे ट्रू टू योर रूट्स यार। क्योंकि ये लोग तो पहले तो दाल चावल खाने का पैसा नहीं था, ये तो चिकन खाने लग गए भाई, रोज चिकन आ रहा है। मुझे क्यों तोड़ा? और सिर्फ घर वालों को ही नहीं, राखी जी ने तो वहीं शानी बनने के लिए भारती जी को भी तोड़ा। तुम्हें कब लगा कि अभी मेरे फेस भी अपना ठीक करना है? बस यही बात चुप गई राखी जी को और फटाक से एक ताना मार दिया उन्होंने। नहीं फेस तो मेरा ठीक नहीं, मेरा तो नोज ठीक किया था मेरा। तो मेरा नोज है ना तुम्हारी तरह ही था, चपटा।
जरा धीरे हंसिए सर, आप अपनी बीवी के रडार पे आ चुके हैं। और भारती जी आप भी अब थोड़ा संभल के रहिए क्योंकि आप रागी जी के रडार पे आ चुकी हैं। नहीं तुम संभालो, तुम कॉमेडी करती हो, मैं भी करती हूँ, तो मेरी कॉम्पिटिटर हो भाई। अब आ चुकी है राखी तुम साहब। जीत चुकी हो। ऑब्वियसली राखी जी जीत चुकी है क्योंकि शी इज एन इंटरनेशनल स्टार यार। जर्मन का ब्रांड है ये ड्रेस, रशिया के बाल है मेरे, नाखून देखो कितने, मैं अपने आप को टिप टॉप रहती हूँ। आज मैं खुद को प्राउड फील करती हूँ, मैं क्वीन हूँ। क्वीन जो खुद एक्सेप्ट कर रही है कि वो पैप्स को कॉल करके बुलाती है। पैप्स को मैं ही बुलाती हूँ। लेकिन जोक सोसाइटी पॉडकास्ट ना काफी स्वीट था क्योंकि इसमें राखी जी ने अपनी पूरी लाइफ की जर्नी बताई थी व्हिच वाज काइंडा इमोशनल एंड काइंडा राखी सावंत। माँ की पॉकेट से पैसे चुराती थी और जाके बाजू में टीवी भी देखती थी। मैं बहुत बड़ी चोर थी। ओके मैं पैदा जहाँ हुई जहाँ बड़े बड़े डॉन है, इसलिए मेरे अंदर थोड़ा सा कुछ कहीं डॉन पाना भी दिखता है। डेफिनेटली। नहीं मैं तो बचपन में बीएम से म्युनिसिपैलिटी स्कूल में जाती थी, फिर उधर मैं बहुत मारामारी करती थी, बात पकड़ पकड़ के मारती थी मैं, लड़कियों को कि लड़कों को? दोनों को। लेकिन इस सारे कीचड़ के बीच भी राखी जी एक कमल जैसा खिली। कीचड़ में एक कमल खिला है। अच्छा आप हो कमल। ऑफ कोर्स मैं कमल हूँ। क्योंकि राखी जी ऊपर वाले में विश्वास रखती है और वो भी हर रिलीजन के। इफ यू नो यू नो। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। नहीं हम चले नहीं, मैं कभी नेक रास्ते पे चली नहीं हूँ। वो तो हमें पता ही है राखी जी, लेकिन अब ये सब छोड़ो, आप ये बताओ कि आप स्कूल में पढ़ाई लिखाई भी करते थे या यही सब करते थे? This is called fork. This is spoon. Okay. This is knife. Okay. This is called plate. Okay. This is called napkin. Okay. सब सिखाते थे इंग्लिश में। और इंग्लिश तो हमें पता ही है कि राखी जी की अच्छी है, उनकी स्टोरी टेलिंग जैसी। मेरा किसी ने हाथ पकड़ लिया, मैं तो बच्ची थी, और मैंने क्या किया, उसके बाटली वाली थी, एक ग्लास मेरे को याद नहीं आ रहा, बच्ची हूँ, मैंने सर पे फोड़ दिया। वो अपनी घर लेके मेरे को ढा ढा मारने आया फुल नशे में। वहाँ पे एक समीर नाम का लड़का था, वो मुझे लेके पानी में छलांग लगा लिया। या साउंड्स वेरी रियल राखी जी, इस पे तो मूवी बननी चाहिए। अभी तो बहुत सारी ऐसी बातें जो मेरी बायोपिक में ही बताऊंगी मैं, जो मैं नहीं बता सकती। Which basically means कि आज की मेरी फेंकने की कैपेसिटी खत्म हो गई है, अब मैं किसी और दिन फेंकूंगी। क्योंकि इसके बाद राखी जी ऐसी चीजें बोलने लगती है जो बच्चे बच्चे को पता है कि झूठ है। अब तो मैंने भी गाली देना शुरू कर दिया है, अब मैंने पूरी गाली में पीएचडी करी। अच्छा जी। बैंड की पकौड़ी। वैसे स्पीकिंग ऑफ गाली देना, तेरी माँ की आंख। अब तक तो आप सबने देख ही लिया होगा कि ये मोहतरमा भी आई थी रिसेंटली हर्ष और भारती के पॉडकास्ट पे, एंड व्हाट शी सेड वाज बियॉन्ड शेमफुल। मैंने मेरे प्रोड्यूसर के ऊपर से का केस कर दिया था। मतलब मैं एक्चुअली आज इसके थ्रू बोल रही हूँ, वो झूठ था। लिटरली एक गूगल सर्च करके ना 10 तरीके ढूंढे जा सकते हैं पैसे निकलवाने के, लेकिन नहीं, हमें धरने पे बैठ जाते हैं आप, अलग अलग जगह पे इंटरव्यूज देते थे। मैं तो कह रहा हूँ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था, प्रोड्यूसर की गाड़ी तोड़ देते। लेकिन ये आर यू सीरियस? खैर जब ये चीज ऑब्वियसली वायरल हो गई तो मैडम जी आ गई उसको जस्टिफाई करने के लिए। मैं सॉरी, ये शब्द उनके लिए बहुत छोटा है। इंडीड। बट उस वक्त की सिचुएशन में उनको भी पता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। रास्ता हमेशा होता है शिल्पा जी, लेकिन द ट्रूथ इज कि आपको अपने पैसे निकलवाना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा किसी की जिंदगी बर्बाद करने से। एंड व्हाट्स वर्स इज कि इन्हें अब ये चीज कन्फेस करने के लिए अप्रिसिएशन भी चाहिए। दुनिया कभी किसी अच्छी चीज को अप्रिशिएट करती ही नहीं है ना भाई ये बंदी इतनी ज्यादा डेल्यूजनल है ना कि उर्वशी जैसी तो 100 ये ब्रेकफास्ट में खा जाए। ये मैंने उनको भी बोला और उन्होंने कहा भी नहीं कि आप बोलो, लेकिन मैंने कहा नहीं, कभी जिंदगी में मौका आएगा तो इससे मैं कन्फेस करूंगी कि वो झूठ था। बड़ा एहसान कर दिया शिल्पा जी आपने उन पे और हम पे। वुमेन कार्ड लड़कियां खेलती है तो इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। भाई कहाँ से आ रहे हैं गट्स ये सब ज्ञान पेलने के? आज 11 साल के बाद भी मैं उनके साथ लास्ट भाभी जी इसलिए मैंने किया, यही सबके मुंह पे जवाब था कि मैं ये सब होने के बाद भी मैं आज उनके साथ काम कर रही हूँ। अच्छा। और अभी हमारे रिलेशन एक्चुअली बहुत अच्छे हैं। मेरा ना खून खोल रहा है जो हंस हंस के और खुशी से ऐसी सारी चीजें बता रही है ना, मतलब लिटरली इतनी क्रीपी और इतनी साइकोटिक लग रही है ना, जैसा खुद कहती हैं। मैं थोड़ी हूँ साइको। एंड सॉरी टू से उतने ही साइको वो लोग हैं जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। बिकॉज मैंने इस टॉपिक पे जो रील बनाई थी ना, उस पे काफी सारे कमेंट्स थे कि पूरा पॉडकास्ट देखो जाके तब समझ आएगा। अबे मैंने देख लिया पॉडकास्ट 2 बार, नथिंग चेंजेस। वैसे ऑन अ साइड नोट, हिना खान ने मेरी वो रील लाइक करी है एंड रीपोस्ट भी करी है। एंड गाइस श्री राखी सावंत जी ने मेरी रिसेंट रील अपनी स्टोरी पे लगाई है। तो गाइस अगर अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है ना, तो अब तो देखो पक्का कर ही लो। पुलिस तो एफआईआर करने के लिए सीधा ये बोलती है कि आपको गंदा लिखना पड़ेगा। एंड आई एम फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड। और तब भी मैं ये पुलिस वालों को नहीं बोल पाई कि आप मेरे को झूठ लिखने को मजबूर नहीं कर सकते, बल्कि मैंने झूठ ही लिख दिया। ब्लेम पुलिस पे डालने की कोशिश अच्छी थी शिल्पा जी, बट यहाँ आप ही गलत हो। और गलत हो तो मान लो ना गलत हो, क्यों एक गलत चीज छुपाने के लिए और 10 गलत चीजें बोल रहे हो? शिल्पा शिंदे के पीछे बस कुत्तों की तरह भौंकना है बस। गाइस आई डोंट नो व्हाई ये बंदी ना एक्सपेक्ट कर रही थी कि इसे इस चीज की वाहवाही मिलेगी, व्हिच क्लियरली बैकफायर्ड। इसीलिए अभी इस लैंग्वेज पे आ गई है भाई, मतलब मिडिल फिंगर दिखा रही है फॉर नो रीजन। बाकी मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सपोर्ट तो मुझे किसी से उम्मीद ही नहीं है सपोर्ट की। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? शी इवन सेड के सिद्धार्थ शुक्ला के अगेंस्ट कुछ प्रूफ्स दे देंगी, और हिना खान के अगेंस्ट तो इन्होंने बहुत ही गंद बका है आफ्टर शी पोस्टेड दिस। आप पब्लिसिटी गेन करने के लिए आप लोगों के पास अपनी बीमारियां हैं, घर के लोगों की जो डेथ हुई है वो लोग हैं। यार ये गलत है, मतलब इतनी पर्सनल चीजें बोलना इज वेरी शेमफुल। उतना ही शेमफुल जितनी शेमफुल इस बंदे की बातें थी। और प्रणीत से तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था यार। एंड इट्स सो वल्गर कि यहाँ पे वो क्लिप्स में दिखा भी नहीं सकता, बट कम ऑन प्रणीत, डू बेटर। और ये जो बंदा है ना जिसने वो चीजें बोली है, इसको तो जो हेट मिल रही है ना वेल डिजर्व्ड है। बट एनीवेज आई एम डन।
सो गाइस दैट वाज इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ट्रस्ट मी गाइस, ये वीडियो बनाने के लिए ना मैंने 5 घंटे से ज्यादा के पॉडकास्ट देखे और मेरा दिमाग जो है ना वो कुक हो चुका है लिटरली। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो। बाय बाय एंड ऑलवेज रिमेंबर, Dilulu is the only Sululu.